Hello friends, I'm Dr. Sneha Nair and welcome back to my channel Bioverse. Friends, we were discussing human reproduction and today we are going to talk about a very important topic, that is menstrual cycle. Let's get started. So children, what do you mean by menstrual cycle? So menstrual cycle is the reproductive cycle that takes place in female primates. Reproductive cycle that takes place in takes place in female primates. Now, this is the definition of NCERT, and we will now try to understand what does this mean. Children, reproductive cycle. First of all, what is reproductive cycle? So reproductive cycle are the changes that takes place in female's body in order to prepare itself for a possible pregnancy. So these are the cyclic changes which are controlled by various hormones present in the body. These cyclic changes involves changes in ovary, changes in uterus, changes in different reproductive organs, and to prepare the body, female body, for a possible pregnancy, which these changes takes place every month. So every month there is a chance or there is a possibility of pregnancy. So let's write it down over here. इसका मतलब हर मंथ बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और हर मंथ बॉडी अपने आप को रेडी कर रही है कि इन केस अगर प्रेगनेंसी कॉज हुई सो बॉडी शुड बी रेडी। और इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ओवरीज में चेंजेस हैं, यूट्रस में चेंजेस हैं, एंड ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो ये हमें समझ में आ गया कि व्हाट डज रिप्रोडक्टिव साइकिल मीन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेट्स? मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है प्राइमेट्स। Reproductive cycle is the menstrual cycle is a reproductive cycle that takes place in female primates. So what do you mean by primates? So children, if you remember, classification में हमने पढ़ा था कि there are different kingdoms, animal kingdom, plant kingdom. Kingdom में different phylums होते हैं और phylums में होते हैं different class and order. तो जो class Mammalia है, do you remember class Mammalia? Mammalia. क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? क्लास मेमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास होता है मेमेरी ग्लैंड। They consist of mammary gland, and female they produces milk to nourish their young ones with the help of these mammary glands. All right. क्लास मेमेलिया में ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स में कौन आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं एप्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग्स। तो प्राइमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ऑफ क्लास मेमेलिया दैट कंसिस्ट ऑफ large brain capacity, that have binocular vision, that show social behavior. So ऐसे organisms को हम क्या बोलते हैं? Primates. Large brain capacity. Then they have binocular vision. Binocular vision, that means both the eyes are present in the front and they have better vision. They can see better. And they show social behavior. Social behavior. तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन ऑर्डर प्राइमेट्स। तो ऑर्डर प्राइमेट्स में आते हैं मंकी, apes, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब आते हैं इन ऑर्डर प्राइमेट्स। तो हमने क्या बोला? रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स में होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से फेजेस होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल it is a 28-day cycle. Okay, so which is roughly a month. So it's a 28-day cycle which consists of various phases, and in different phases different changes takes place in female's body which is controlled by different hormones. Menstrual
cycle is a 28. All right. So in your NCERT, it is given that it is 28/29 days cycle. So usually it is at 28, but 29 is also correct. So it is 28 to 29 days cycle. So usually we take 28. So when we are going to study about the different phases, we are going to consider it as 28 days. All right. So menstrual cycle is a 28 days cycle. It consists of 4 different phases. It consists of 4 different phases. What are those phases? 4 different phases are: number 1 is the menstrual phase. Menstrual phase. Menstrual phase lasts from first day of menstrual cycle to 5th day of menstrual cycle. ठीक है, 20 day cycle है, तो first to 5th day कौन सा phase है? Menstrual phase. Then there is, I use some other color, it's not very visible. So the next phase that we have is the follicular phase. Follicular phase. So follicular phase, it starts from 6th day of the menstrual cycle to 13th day. It is from 6th to 13th day. Then we have the next cycle that we have is next phase that we have in menstrual cycle is the ovulatory phase. Ovulatory phase. So ovulatory phase, it takes place on 14th day of the menstrual cycle. And the last phase that we have is the luteal phase. Luteal phase. So luteal phase, it starts from 15th day of the menstrual cycle and it is up to 28th day. Okay, children, so we have 4 different phases in the menstrual cycle. One is menstrual phase, the second one is the follicular phase, the third one is the ovulatory phase, and the fourth one is the luteal phase. So we can divide the entire menstrual cycle. ये यहाँ पे जो menstrual cycle है, it is 28 days cycle. All right, so total days in the menstrual cycle is, it's a 28 days cycle, and we have divided the 28 days in 4 different phases. As I just told you, menstrual phase, it is from the first phase is the menstrual phase, that is from day 1 to day 5. Then second phase is the follicular phase, which is from day 6 to day 13th. The third phase is the ovulatory phase, which is on day 14th, and the luteal phase, which is the last phase, it is from day 15th to day 28th. So these are 4 different phases of the menstrual cycle. Now let us understand the changes that takes place in each and every phase in detail. Friends, first of all, we are discussing the second phase, that is the follicular phase. Even though menstrual phase is the first phase, but we'll start with the second phase, that is the follicular phase. The follicular phase. So before understanding the follicular phase, it's very important that we understand what are follicles. So follicles, they are present in ovary, and inside these follicles, development of oocyte or the female gamete takes place. Let us have a look at the diagram of ovary.
So this is the diagram of an ovary. As we know, ovary is an almond-shaped structure, and we have also discussed in last lecture that ovary consists of outermost epithelium, and inside there is stroma. The stroma is divided into two parts, the cortex and medulla. So this outer part that you can see, the dark pink part that you can see over here is a cortex part, and the inner part is the medulla. Now, in the cortex part of the ovary, number of follicles are present. What do you mean by follicles? So, follicles, these are like tiny structures present in the cortex part, and inside the follicles, the development of oocyte takes place. So, this is the primary follicle. All right. And primary follicle then converts into secondary follicle, then tertiary follicle, and finally it gets converted into mature follicle known as Graafian follicle. Let me draw it over here. तो ये हमारे हैं primary follicles, ये है secondary follicle. Then we have tertiary follicles, and what is difference between these follicles? So that we will discuss in next lecture, in which we are going to discuss about this oogenesis. There we'll discuss in detail. But for now, you should know that there are different layers that are present around these the oocyte. So there is tunica externa, then there is tunica interna, then slowly, steadily there is development of anterum, that is a fluid filled cavity, and finally it's get converted into Graafian follicle. So the first follicle that you can see here is primary follicle, then it develops into secondary follicle. This is secondary follicle, then it converts into tertiary follicle, and finally it forms Graafian follicle. So this is Graafian follicle, and Graafian follicle is the mature follicle. It is Graafian follicle. So Graafian follicle is the mature follicle. So children, ये जो follicles हैं, इनके अंदर oocyte का development हो रहा है. ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल है बच्चों. ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर oocyte जो है, ये जो मियोसिस का प्रोफेज 1 वाला स्टेज में है. ठीक है, इट इज अ प्राइमरी oocyte. ये अभी भी प्राइमरी oocyte है और ये प्रोफेज 1 स्टेज में है. सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है तो इसके अंदर भी जो oocyte है ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है. ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों फॉलिकल के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कुछ लेयर्स का डेवलपमेंट हो गया जिनको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहाँ पर जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, यहाँ पर दो लेयर्स ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना का डेवलपमेंट हो गया है. ठीक है, सो लेट अस से कि ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका इंटरना का यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है. टर्शियरी फॉलिकल में जब ये आता है oocyte, तो अभी ये जो oocyte है ये इसमें जो मियोसिस 1 चल रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर जो oocyte है ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन यहाँ पर अब सेकेंडरी फॉलिकल से डिफरेंट कैसे कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हो गया है. तो दिस इज देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका इंटरना तो है ही यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका इंटरना. एंड फाइनली अब ये जो फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो गया है इनटू ग्राफिन फॉलिकल. चिल्ड्रन, ग्राफिन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल. यहाँ पर जो oocyte है, द oocyte इज इन इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है और मियोसिस 2 चल रहा है, और ये सेकेंडरी oocyte है. तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होता है, oocyte है,
ये कैसा oocyte है? इट इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये कौन से फेज में अरेस्टेड है? इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे। बट अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एक अंडर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अभी हमें पता है कि यहाँ पर जो है ओवरी, उसमें डिफरेंट फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर oocyte है और oocyte जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जो मेच्योर फॉलिकल होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल इज द मेच्योर फॉलिकल। और इस मेच्योर फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो कैसा oocyte है? इट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब फॉलिकल क्या हो गया? मेच्योर हो गया है। नाउ इट इज रेडी टू रिलीज इट oocyte। ठीक है, तो अब क्या होता है लास्ट में? क्या होता है जब ये मेच्योर हो जाता है तब ये जो oocyte है ये फाइनली यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द फॉलिकुलर फेज। तो चिल्ड्रन, फॉलिकुलर फेज क्या होता है? फॉलिकुलर फेज वो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर फॉलिकल्स धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं और प्राइमरी फॉलिकल से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्राफिन फॉलिकल में। तो इसलिए हम इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज जो है वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर फॉलिकल्स जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा है और प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, और ग्राफिन फॉलिकल क्या है? ग्राफिन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल जिसके अंदर ऐसा oocyte है विच इज रेडी टू बी रिलीज्ड। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। पर ये डेवलपमेंट करवा कौन रहा है? कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो देर इज अ हार्मोन विच इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और इस हार्मोन को हम बोलते हैं FSH। FSH क्या होता है? ये FSH, FSH इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफिन फॉलिकल या फिर मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वो मेच्योर हो रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या चेंजेस हो रहे हैं बेटा यहाँ पर? जैसे जैसे ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये फॉलिकल्स जो हैं दे रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन हार्मोन। सो अनदर हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस फेज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये कौन रिलीज कर रहा है? दिस एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलीज बाय द फॉलिकल्स। So let us write here that there is one more hormone released here, and that is called as estrogen. Estrogen is also released in this phase, or estrogen जो है it is released, estrogen is released by follicles। ये जो follicles हैं ये एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। अब एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है फॉलिकल्स ऑफ ओवरी से, तो दैट इज व्हाई एस्ट्रोजन इज अ ओवेरियन हार्मोन व्हाइल FSH इज अ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन जो रिलीज हो रही है, एस्ट्रोजन करेगा क्या?
ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको थिक करेगा. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस. इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि यूट्रस के अंदर 3 लाइनिंग्स होती हैं. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज द perimetrium, the middle layer is called as myometrium, and innermost layer is called as the एंडोमेट्रियम. तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? इसका काम है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है ये, और इसलिए फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं. प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम. और ये एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटरस. अब ये एंडोमेट्रियम को क्यों हम डेवलप करवा रहे हैं? इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटरस. तो एंडोमेट्रियम क्यों डेवलप हो रही है बच्चों? क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो यूटरस विल receive the जाइगोट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल रिसीव द जाइगोट. इसके लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को रेडी कर रहा है, इसके लिए यूट्रस अपने आप को रेडी कर रहा है. ऑलराइट. तो फॉलिकुलर फेज क्योंकि वहां पर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, इसलिए फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज proliferative phase. सो फॉलिकुलर फेज इसलिए क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है. प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कर रहा है. ठीक है, इतना समझ में आया? सो दीज आर द 2 चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और इसके वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है. एंड एट द सेम टाइम दीज फॉलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर रहे हैं, उसका प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फेज, ओव्यूलेटरी फेज, जो 14th डे में होता है. और यहाँ पर कौन सा हार्मोन का लेवल ज्यादा है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, विच इज अ पिट्यूटरी हार्मोन. और इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, मतलब हाई लेवल ऑफ LH, पीक पर है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH पीक कॉल्ड एज LH सर्ज. और बिकॉज ऑफ LH सर्ज what happens? Ovulation takes place. Ovulation is release of oocyte from the mature graphene follicle. All right. So this takes place on the 14th day of the menstrual cycle. All right. तो अब ओव्यूलेशन हो गया है, अब क्या होगा? सो ओव्यूलेशन के बाद नेक्स्ट फेज होता है हमारा ल्यूटियल फेज. हमें ल्यूटियल फेज में क्या होता है? अगेन लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम. तो हमने क्या पढ़ा? प्राइम पीरियड डेवलप हो गया, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्राफिन फॉलिकल में. ग्राफिन फॉलिकल से हो गया ओव्यूलेशन. अब ओव्यूलेशन हो गया तो अब क्या होगा? जो oocyte है वो तो रिलीज हो गया, वो तो बाहर चला गया. अब जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, दैट फॉर्म्स स्ट्रक्चर कॉल्ड अ कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. एक्चुअली इट फर्स्ट फॉर्म्स कॉर्पस हीमोरेजिक. दैट मींस जो ग्राफिन फॉलिकल की लाइनिंग्स हैं वो होती हैं, oocyte उसके अंदर नहीं है क्योंकि वो रिलीज हो गया है, और एक ब्लड क्लॉट होता है जिसको कॉर्पस हीमोरेजिक बोलते हैं. एंड फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. What is corpus luteum? So corpus luteum is a yellow colored body जो किससे बन रही है? ग्राफिन फॉलिकल से. जब ओव्यूलेशन हो गया है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम.
Now this corpus luteum, it releases a hormone called as progesterone. Now this is very important hormone. It is also called as pregnancy hormone. It is called as pregnancy hormone. It is very important hormone. ठीक है, तो जब ग्राफिन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो गया है तो अब क्या बन गया? ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करने लगेगा? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है? ल्यूटियल फेज में आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफिन फॉलिकल है, आफ्टर ovulation, graphene follicle, it gets converted into corpus luteum. So graphene follicle forms corpus luteum. ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? हम यहां लिखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज येलो कलर्ड बॉडी। इट्स अ येलो कलर बॉडी। ठीक है, येलो कलर का होता है। और it releases progesterone hormone. Progesterone hormone. It releases progesterone hormone. Progesterone hormone is also called as pregnancy hormone. Pregnancy hormone. ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज करा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये सब हो रहा है इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज होता है फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। ठीक है, तो 15th डे से लेकर 28th डे में धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और थिक बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूटरस को प्रिपेयर कर रहा है फॉर प्रेगनेंसी। कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कॉज होती है, अगर मान लीजिए जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, देयर इज फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो उस टाइम पर द यूटरस शुड बी रेडी टू रिसीव द जाइगोट। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप को रेडी कर रहा है। कैसे रेडी कर रहा है? बाय थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहां पर हमने पहले वाले फेज में देखा था कि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गया था फॉलिकुलर फेज में। ठीक है, ल्यूटियल फेज तक आते आते एंडोमेट्रियम और भी ज्यादा थिक हो जाएगा। कहते हैं सो दैट अगर जाइगोट बनता है तो वो यूट्रस में आके अच्छे से अपने आप को इम्प्लांट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम जो है और थिक हो जाएगी। सो देर इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन देर इज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये हो रहा है ल्यूटियल फेज में। अब अगर इस कंडीशन पर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ है और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और जाइगोट यूट्रस में आया, एंडोमेट्रियम थिक है, अच्छी वेल प्रिपेयर्ड है फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन हो गया और जो है फीटस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अंदर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होकर फीटस में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऑलराइट, अगर उस मंथ एग जब रिलीज हुआ वहां पर एम्प्यूल
रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, रिमेंबर, तो एग रिलीज हुआ लेकिन एम्पिलरी रीजन उससे ही मिला है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना है, तो एज अ रिजल्ट अभी जाइगोट नहीं बना है तो क्या इम्प्लांटेशन की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बना था 15th डे से, जो धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, बट आफ्टर 28th डे नाउ इट इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डी जनरेट है। 28th डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाएगा और अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। एंड एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के एब्सेंस में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इट इज अनएबल टू होल्ड इटसेल्फ। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही है और एज अ रिजल्ट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल ब्रेक, endometrium lining will start shedding off, and this is the mark of next cycle. That is the next phase, that is कि हमने स्टार्ट किया है सेकेंड फेज से, बट ल्यूटियल फेज के बाद वापस से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज, देन follicular phase, then ovulatory phase, then luteal phase, then menstrual phase। तो अभी क्या आ गया है, वापस से menstrual phase स्टार्ट हो गया है, menstrual phase। ठीक है, तो ये menstrual phase कौन से डे में होगा? ये 1st से 5th डे में होगा। तो ये नेक्स्ट साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया जो 1st से 5th डे में है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम, तो 28th डे तक कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं है, एंडोमेट्रियम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम थिक हो रही थी। Corpus luteum in absence of progesterone hormone, now endometrium lining is unable to hold itself, or as a result क्या होगा, there is shedding of endometrium lining, shedding of endometrium। अब जब ये एंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटरस, तो जब ये एंडोमेट्रियम शेड होने लगती है तो इट कम्स आउट ऑफ amount of blood and mucus, and this is called as the menstruation, and this is called as phase। ठीक है, तो shedding of endometrium along with some mucus and blood, because blood vessels get rupture। endometrium जब shed होने लगेगा तो blood vessels है जो अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रेजेंट है एंड ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, तो इट कॉजेस ब्लीडिंग द वजाइना, इट कम्स आउट ऑफ वजाइना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? इट इज फ्रॉम 1st to 5th डे ऑफ दिस एंटायर साइकिल। ठीक है, और फिर जैसे ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाएगी, म्यूकस ब्लड बाहर आएगा 1 to 5th डे, अब धीरे धीरे इस फेज में धीरे धीरे अगेन FSH का अमाउंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज फिर से कौन सा फेज आ जाएगा? फिर से आ जाएगा हमारा फॉलिकुलर फेज। जैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाती है, उसके बाद फिर से FSH, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज करने लग जाएगा, फिर वापस से जो अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 6th डे, और 6th डे से लेकर 13th डे जो फॉलिकल्स है वो धीरे 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 डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल में, और यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज भी हो रहा है,
और फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है और ये जो एस्ट्रोजन है फिर अगेन ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो गई थी? ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज आते आते जब फॉलिकुलर फेज आएगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से बनने लग जाएगी। इसे वापस से बनाने में कौन हेल्प करेगा? इससे हेल्प करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल्स। और क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, तो इसलिए फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। फिर अगेन वही हुआ कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो गई, एफएसएच और एलएच का नंबर धीरे धीरे, अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एक टाइम आएगा जब एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा विच विल कॉज ओव्यूलेशन, that is release of oocyte from the graphene follicle। और जैसे ओव्यूलेशन होगा तो ग्राफिन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्ट्रॉन बनाने लग जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और ठीक करेगा, इट विल प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन। बट अगर इम्प्लांटेशन नहीं है हुआ है तो द कॉर्पस ल्यूटियम is unable to maintain itself और 28th डे आते आते कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लग जाएगा। और जब वो डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से शेड होगी और फिर से आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज फ्रॉम 1st to 5th डे। So I hope this is clear to you, children. We'll meet in next lecture. We'll discuss the next topic. Till then, bye-bye, and please do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you.